Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher. Today we start chapter number 4, Census of India and National Sample Survey Organization. So introduction is various types of statistics are collected. Statistics means data. So various type of data are collected by various countries all over the world. Out of these, population statistics are perhaps the oldest type of statistics. जो पॉपुलेशन सेंसस है वो सबसे स्टेटिस्टिक्स या डाटा है पॉपुलेशन कलेक्ट करने का वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप है. इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम में द लीडर्स ऑफ द ट्राइब्स यूज्ड टू कलेक्ट स्टेटिस्टिक्स अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ट्राइब. कि वो डाटा कलेक्ट करते थे कि कितने हमारे नंबर ऑफ ट्राइब्स, कितने कबीले हैं हमारे गाँव में. या देयरफॉर kings and emperors also used to collect population statistics for recruiting people in their army. आर्मी में पीपल रिक्रूट करने के लिए भी वो डाटा कलेक्ट करते थे. एंड फॉर इम्पोजिंग टैक्सेस. हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, द एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, स्कोप ऑफ पॉपुलेशन statistics have become very wide. These days, population statistics provide comprehensive and detailed knowledge about the population of the country. Sources of population statistics in India are population census, vital statistics are registration of birth and death, demographic surveys. Population census is a method where all the persons, all the people in the country are counted, and it is conducted after the 10 years. So population census is the main and the oldest, most comprehensive source of population statistics in India. It provides detailed data about the population of the country. Meaning and definition are: population census refers to counting करनी है all the persons in a country at a particular point of time or during a period of time. Along with this, population census also provide data about various data. ये सिर्फ population के बारे में ही नहीं बताता, और भी इसमें हम find out करते हैं like economic, social, cultural, regional, linguistic and other such aspect of population. Linguistic means languages. United Nation Organization है UNO, उन्होंने define किया है census को: the total process of collecting, compiling and publishing demographic, economic and social data pertaining at a specified period of time or times a person in a country or delimited territory. Methods क्या हैं population का डाटा कलेक्ट करने के? de facto method and de jure method. de facto method में क्या है? under this method number of persons living in a country are counted simultaneously on that particular date or night when the population census is conducted. जब डाटा कलेक्ट करना है तो उसी दिन या रात को काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. सो ऑल द पर्सन्स आर काउंटेड वेयर एवर दे आर प्रेजेंट ऑन द डे और नाइट ऑफ द सेंसस, और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस. इसमें हम परमानेंट प्लेस को काउंट नहीं करते. सो इसे बोलते हैं डेट सिस्टम ऑफ पॉपुलेशन सेंसस. मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ वेरी सिंपल एंड एक्यूरेट, नो स्कोप फॉर डुप्लीकेशन, हाईली सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल कंपेरेबिलिटी. Demerits are highly expensive method, need huge efforts, large number of trained efficient enumerators required, difficult to count people on who are moving on during day or night. De jure method means under this method the population is calculated on the basis of permanent place of residence. So the normal or temporary place of their residence is not included. That's why this method is called period system of population census. Merits are provides high accurate population, cost effective, conducted in easily and convenient manner, and this is useful in economic planning on regional basis. Demerits are always a scope for duplication. Permanent place may not have the counting. Under this method population census is completed over a period of time. और ये जो मेथड है, दैट्स वाई दिस मेथड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया सिंस 1941 से ही हम यूज़ कर रहे हैं. पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में क्या है? इंडिया में फर्स्ट एवर सेंसस कंडक्ट किया गया था 1872 में, और इसकी कवरेज लेकिन लिमिटेड थी, कुछ एरियाज़ को ही इसमें कवर किया गया था. तो फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज एंड कंप्लीट सेंसस किया गया 1881 में. ये 10 ईयर्स के बाद हमारे इंडिया में किया जाता है पॉपुलेशन सेंसस. सो दस द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस में भी रेफर्ड एज डेसिनियल सेंसस, मीन्स 10 वर्षीय सेंसस होता है. तो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस किया गया 2011 में, और नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस किया जाएगा 2021 में. सो इट मस्ट बी नोटेड है दैट इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक डेट ऑन विच इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस डेट, और स्पेसिफिक डेट होती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया था सेंसस एक्ट 1948 के अंडर. सो द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर सुपरविजन और कंट्रोलिंग किसकी थी? सेंसस कमिश्नर की. द इंटायर सेंसस ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ सेंसस कमिश्नर.
तो आपने इसके बारे में लिखनी है लाइन्स। और मेथड्स क्या हैं इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में हम डी जॉर मेथड यूज़ कर रहे हैं, डी फैक्टो नहीं कर रहे, डी जॉर। डी जॉर मीन्स परमानेंट रेजिडेंसी को हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट 2011 का सेंसस जो किया गया है उसके बारे में। द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया इज़ कंडक्टेड इन 2011 आफ्टर द सेंसस 2001। 2001 के बाद सेकंड सेंसस किया गया 21st सेंचुरी एंड थर्ड मिलेनियम में। द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011 वाज कैरिड आउट, कब किया गया? February 9 to February 28। और उस टाइम हमारी पॉपुलेशन इन्होंने बताई है इनमरेशन वर्क, और ये वर्क किन्होंने किया? 2.7 मिलियन इनमरेटर। इनमरेटर आर जो पर्सन हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट की हेल्प की है जो इन पर्सन ने। कितने अपॉइंट किए थे? 2.7 मिलियन। हमारे भी घरों में आते हैं पूछने के लिए कि आपकी फैमिली में कितने पर्सनस हैं, क्या काम करते हैं, तो ये पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं। These enumerators collected population statistics for approximately 7,933 towns and 6 lakh villages। कॉस्ट कितनी आई थी इसकी? 2200 करोड़। 15th सेंसस सिंस ये 15th सेंसस था 1872 से, और इट इज़ कंडक्टेड इन 2 फेजेस। 2 फेज़ में इसको किया गया। पहला फेज़ 1 अप्रैल से सितंबर तक था, और सेकंड फेज़ है जो 29 फरवरी से 28 फरवरी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोटो ऑफ 2011 सेंसस इज आर सेंसस आर फ्यूचर। साइलेंट फीचर्स क्या हैं? साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का साइज़ है 2011 में 121.02 करोड़ है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इनका डाटा आपने लर्न करना है। दैट इज़ डेथ रेट इज़ 241.7 per thousand एंड बर्थ रेट इज़ 7.1 per thousand। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सनस रहते हैं। लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो, और रूरल अर्बन पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स से क्या किया गया? इस वाइटल स्टैटिस्टिक्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसमें क्या होता है? जब भी कोई पर्सन की बर्थ होता है या डेथ होती है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है कि हमारे घर में इस बेबी का बर्थ हुआ है, इस डेट को हुआ, तो ऐसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट। दीज आर द टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक्स। डेमोग्राफिक सर्वेज मीन्स अलग अलग एरिया में जाके हमें डाटा कलेक्ट करते हैं, और ये एक लॉन्ग गैप का होता है। जैसे हमारे इंडिया में सेंसस मेथड इसी से हम करते हैं। अलग अलग एरिया में अपॉइंट किए जाते हैं नॉमिनेटर, और वो डाटा कलेक्ट करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है NSSO जो कि डाटा कलेक्ट करती है अबाउट द सेंसस, और ये देखती है कि कोई भी हिंड्रेंस, रुकावट तो नहीं आ रही इकोनॉमिक प्लानिंग में। और इनकी सजेशन दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोफेसर PC महालनोबिस प्रिपेयर्ड अ प्लान टू ऑर्गेनाइज अ सैंपल सर्वे फॉर द होल कंट्री। और तब से ये हम मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि सर्वे करना है। हैज़ बीन फिल टू फिल अप अ डाटा गैप फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है NSSO की, कैसे बना हुआ है? सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च डिवीजन की गई है इसकी। फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन जिसमें 48 रीजनल ऑफिसेज हैं, 117 सब रीजनल ऑफिसेज। डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन और कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। सर्विस बाय NSSO ने कौन कौन से सर्विस किए हैं? ये कलेक्ट करती है डाटा अबाउट सोशो इकोनॉमिक, सोशल मीन सामाजिक और आर्थिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज डाटा कलेक्टेड थ्रू रैंडम सैम्पलिंग, और ये रैंडम सैम्पलिंग जैसे किसी को भी काउंट कर लिया 5-10 किस आइटम्स को हमने काउंट करना है, ये आपने इसके बैक चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है। सो 13th राउंड में ड्यूरेशन जो सर्वे राउंड की है 3 months to 8 months, और 14th राउंड में इसकी ड्यूरेशन है 6 months to मेनली 1 year। NSSO ने 77 राउंड्स ऑफ डाटा कलेक्शन किए हैं, और इन्होंने लास्ट में किया कि NSSO पब्लिश करती है डाटा थ्रू इट्स जर्नल, और इसका जर्नल का नाम क्या है? सर्वेक्षणा। फंक्शंस क्या हैं? ये सोशल इकोनॉमिक सर्विस करती है, कलेक्शन करती है डाटा की, और कंडक्ट करती है एडॉक सर्विसेज। शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? डिले इन पब्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड सर्वेज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इनएडिक्वेट स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर।